Episode of MindSpeak, the webinar series we had planned during the lockdown that has become an eye-opener and the best platform that discusses very crucial issues that concern us all in the gems and jewelry industry. Friends, kindly note today's topic on MindSpeak is again a very unusual subject. And again, like yesterday, it is about common people, uncommon greatness. साधारण लोग, असाधारण ऊंचाइयां. The world we all know is full of simple people. Many of the common people show uncommon greatness at times, as this has been seen and read by all of us. When we hear of their real life stories, they win our hearts and souls. We at times want to salute them for their courage and work. Today, we have Shri Himanshu Bhatji again, who is a leadership and management coach for the last 8 years. Himanshu Bhai has earlier worked in leadership positions with organizations like Excel India, Asian Paints, Aditya Birla Group, Reliance India, with a 40 years experience on leadership and management. He is presently coaching people at L&T, Aarti India, Sanofi Pharma, Unique Pharma, GCP, TCL, etc., and helping leaders in developing effectiveness as a habit. Himanshu Bhai shall take us all on a journey as he shall be narrating some very inspiring real life stories of some very uncommon people who had conviction, who developed the courage, and some who got the inspiration that resulted in their uncommon greatness. I remind you all to keep your phones and laptops on the video off mode to enjoy the session with a better network. Himanshu Bhai, I hand over you the platform. Kindly, you may request you to start your presentation. Thank you, Ashok Bhai. In fact, it's going to be very interesting to share on this subject. इस सब्जेक्ट को यदि एक दूसरा नाम दिया जाए तो हम इसे चारित्र कीर्तन ऐसा कह सकते हैं. कीर्तन में जैसे हम जब कीर्तन करते हैं तो हम प्रभु का कीर्तन करते हैं तो प्रभुमय होने की अपनी संभावना है, हम प्रभु की ओर जाते हैं. चारित्र कीर्तन करने से हम उसी दिशा में उनकी ओर जाते हैं. तो आज हम we are going to be talking about some of those common men, common people with uncommon greatness. In fact, they all are real life heroes. In 1946, when it was already decided that India is going to be given independence in the year 1947, one American correspondent asked to Mahatma Gandhi, he said, Mr. Gandhi, what is going to be the biggest problem of independent India? आजादी मिलने का नक्की हो चुका था, तो अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा, मिस्टर गांधी, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा प्रश्न क्या होने वाला है? गांधी जी ने कुछ क्षण सोचा, वो एकदम उदास हो गए और उन्होंने कहा, the hard heartedness of the intellectuals, बौद्धिकों की उदासीनता will be the biggest problem of independent India. बौद्धिकों की उदासीनता स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा प्रश्न होने वाला है. और हमने गांधी जी को काफी हद तक सही साबित कर दिया. लेकिन आज हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे
जिन्होंने गांधी जी को सही साबित किया। आज हम उन लोगों की बात करेंगे, ऐसे सामान्य लोगों की बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर गांधी जी होते तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हम जैसे लोगों की है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमसे भी कुछ सामान्य स्तर पर से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो जब हम याद करेंगे तो हम सबको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये करने जैसा तो था। इट इज सैड of kindness. Himanshu bhai, your voice is breaking. Okay. In time, मतलब Now it is थोड़ा बेटर है सर, थोड़ा बेटर है। ओके। सही समय पे जरूरतमंद व्यक्ति को आज हम जो बातें करने वाले हैं वो हमें याद दिलाने वाली है। जो आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट में सब लोगों ने कहा था, हम सबके दिल को छुआ था। आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। पहली कहानी एक ऐसे किरदार की है, उनका नाम है महर्षि भाई मेहता। आज कोई अच्छी ऊंचाई पे, भावनगर के एकदम कुछ मध्यम वर्ग में दरिद्र कह सके उस स्तर पे से आए एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। माता पिता और 5 भाई बहन थे। कुछ दिन माता और कुछ भाई बहन को शाम को भोजन बिना चलाना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में उनको पढ़ाया गया था। बीएससी हुए, जॉब ली, जॉब में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। उनके जो पर्सनल वर्च्यूज थे वो एकदम उनको अलग बनाते थे। वो सबको बहुत इज्जत देते थे। अपने काम में बहुत रुचि लेकर एकदम श्रेष्ठता से काम करते थे और हमेशा पैशन के साथ काम करते थे, हिम्मत के साथ में काम करते थे। प्रगति हुई, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ रहे थे। जीवन थोड़ा अच्छा होने लगा था। एक बार मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक यंग 10 साल का लड़का उनके पास में कुछ मांगने के लिए आया। इन्होंने कहा कि कुछ दीजिए, बहुत काम का है। इन्होंने कहा कि अरे तुम तो एकदम छोटे हो, तो तुम स्कूल पे क्यों नहीं जाते? दोनों के बीच में कुछ बात करने का समय बना था, तो लड़के ने कहा कि कैसे करता, स्कूल में मैं कैसे जाता, घर में पैसे के बिना काम कैसे चलता? तो बोले इतना ज्यादा तेरे ऊपर आधार है? बोले हाँ। इन्होंने कहा कि महर्षि भाई ने कहा क्या हम तुम्हारे घर पे जा सकते हैं? इन्होंने कहा कि हाँ जा सकते हैं।
तो दोनों एक झूपड़पट्टी में जहां वो लड़का रहता था, उसका नाम था रोशन, उसके घर पे गए और सचमुच महर्षि भाई को अनुभव हुआ कि रोशन मांग कर पैसा घर पे नहीं ले जाता, तो घर चलाना मुश्किल था, मुश्किल नहीं असंभव था। महर्षि भाई ने कहा मांग कर जितना पैसा लेकर घर पे आता है उतना, और उसके उपरांत उनकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, लेकिन आप अभी उनसे ये याचना का काम मत करवाइए, उनको पढ़ाइए। हम भी ऐसा कहते हैं, लेकिन सब लोग या कोई लोग करते नहीं है। लेकिन रोशन की फैमिली ने ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आपका सपोर्ट है तो रोशन कल से मांगने के लिए नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा। 10 साल का लड़का, उसको स्कूल में भेजा गया, एक के बाद एक कक्षा पास करता गया, महर्षि भाई का प्रोत्साहन मिलता गया। ये वो महर्षि भाई थे जो उस समय भी सामान्य स्थिति से गुजर रहे थे, और उन्होंने रोशन को कहां तक लिया, तो रोशन को उन्होंने आगे पढ़ाते पढ़ाते उनको मर्चेंट नेवी में जाना था। रोशन को मर्चेंट नेवी में उनको एडमिशन दिलवाया। मर्चेंट नेवी का उनका पढ़ना संपूर्ण महर्षि भाई ने करवाया। जॉब मिलने तक, स्वतंत्र होने तक अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने तक महर्षि भाई का सपोर्ट रोशन के फैमिली को चालू रहा। अच्छा लगता है सुनने का, किसी एक व्यक्ति ने एक परिवार में डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन डिफरेंस कैसा क्रिएट किया? आज रोशन अपने परिवार के उपरांत एक परिवार को सपोर्ट कर रहा है। अपने जो मुख्य परिवार था उसके उपरांत एक परिवार को वो सपोर्ट कर रहा है, और वो परिवार को भी और बाकी के लोगों को भी और अपने कॉलेज के एकदम जूनियर लोगों को भी श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाता है। ये महर्षि भाई अपने पुराने दिन भूले नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे सेफ्टी और हाइजीन में महर्षि भाई को बहुत ऊंचा नाम मिला है, बहुत ऊंची इज्जत मिली है, बहुत। आज इंडियन बॉर्न अमेरिका में किसी भी व्यक्ति ने अमेरिकन हाइजीनिस्ट एसोसिएशन जो है, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट AIHA, उसमें दे आर सिलेक्टिंग डायरेक्टर्स। कोई इंडियन बॉर्न इंडियन कभी डायरेक्टर नहीं बना। महर्षि भाई की एथिकल प्रैक्टिसेस के कारण उनको डायरेक्टर बनाया गया, अच्छी बात है। लेकिन उनकी प्रैक्टिस जिससे आप सब लोगों को नाज होगा, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनकी कंपनी में कुल 27 लोग हैं, 4-5 लोग हिंदुस्तान में है, बाकी के सब बाहर है, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, USA। ये सभी लोगों को इंडस्ट्री में जाना है, एनालिसिस करनी है, बाकी का काम करना है। ऑल आर एक्सपर्ट इंजीनियर्स एंड हाइजीनिस्ट। लेकिन जब ये फैक्ट्री में जाएंगे तो काम करेंगे तो फीस मिलेगी महर्षि भाई की कंपनी को। अभी सब लॉकडाउन में है, जैसे हम लोग हैं लॉकडाउन में, महर्षि भाई भी लॉकडाउन में है, उनके सभी लोग लॉकडाउन में हैं। तो फीस का आना
हम जैसे के लिए है, ऐसे ही उनके लिए भी 0 हो चुका है। इनके एम्प्लॉइज में से कुछ लोगों को चिंता होने लगी कि सैलरी का क्या होगा, और ये बात महर्षि भाई के पास में आई। इन्होंने अपने सभी 27 एम्प्लॉइज को बताया, इन्फॉर्म किया, मैं आपकी सैलरी की चिंता समझ सकता हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा हुआ हूं। I have been born and brought up in India, so I have developed, and in our organization also we have developed a habit of saving for rainy days, and accordingly we have saved enough money. हमने अच्छा सेविंग किया है, मेरी हिंदुस्तान की जो पालना हुई है उस कारण से। और मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं कि 1 साल तक यदि ये कंडीशन रही, लॉकडाउन रहा, हमारे पास में काम नहीं होगा, तो भी 1 साल तक आपको आपकी पूरी सैलरी हर महीने मिलती रहेगी। और इस प्रकार से ये सिचुएशन चालू हुई है, तब से लेकर के आज तक, और आज के बाद में आगे उसी तरीके से सैलरी का पेमेंट हो रहा है। We can understand how one person can make the difference. We can understand how one person can make the difference. ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छे दिन देखकर नहीं आए थे, लेकिन किसी को अपनी स्थिति से आगे ले जाने में, किसी में कुछ बदल हो सके तो अपने प्रयत्न से करने में, इन्होंने अपनी सोच और अपने रिसोर्सेस, ये दोनों एक रूप में जनरसली काम में लगाए। इनफैक्ट जो हमने पहले बात की, फिर से एक बार याद कर लिया, जब जरूरत है, जिन then it can make difference. तो ये एक हम सबके लिए सीखने वाली बात है। हमने एक बात देखी, all those people who are making difference, they are not making difference because they have a lot of resources. They are making difference because they want to make difference. Last few days, rather, few months back, you would have read one story. 180-year lady, 180-year lady from Tamil Nadu, Coimbatore district, named Kamal Thala, is making idlis and selling at ₹1. One idli, ₹1, along with chutney and sambar. That is what she is doing. Now this story has become a household for a lot of people in our country, specifically all those people who are associated with some social media. You know what we could learn from that story? Before 20 years, she had started this. And
The reason behind starting it was, she said, in this kind of village area, getting something to eat at an affordable price is a big challenge. So let me try to do the same for needy people of this area. इस विस्तार के लोगों के लिए जिनको खाने के लिए ज्यादा पैसा देना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए. ये वो दूर सुदूर का गांव, एंड शी हैड ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज. उनका जो घर भी था वो पत्तों से, पेड़ के कुछ टुकड़ों से बना हुआ था. बड़े सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, शी वुड गेट अप, प्रिपेयर, पत्थर से इडली का डो और सांभर के और चटनी के लिए वो सब कुछ सामान वो पत्थर से बना दी थी. 7 o'clock onwards, the idlis were available to people. कितने बजे जागकर बनाती होगी? 7 बजे से तो इडली देने का काम चालू हो जाता था. In that small place, around 600 idlis she was making. 1 rupee per idli. And you know, we just can't imagine. हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनको में से कुछ लोगों को तो मालूम होगा, per day she is keeping just 200 rupees for herself. अपने लिए सिर्फ 200 रुपया वो रखती है, और बाकी का इन सब में खर्चा होता है. ये 200 रुपया, we all know, is less than the minimum wages of today. मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो मिनिमम वेजेस होते हैं ना लेबरर्स के, पर डे रेट का जो भाव है उससे ये कम है. एंड somebody told her, why not taking some more? People can pay. आप कुछ और क्यों नहीं लेते? लोग तो पे कर सकते हैं. आप क्यों और चार्ज नहीं करते हैं? लोग तो पे कर सकते हैं. इन्होंने कहा, मेरी जरूरत इससे ज्यादा है नहीं, तो मुझे लोगों को ज्यादा खर्च क्यों करवाना चाहिए? और आगे उन्होंने कहा कि मेरे यहां वैसे भी कुछ गरीब लोग आते हैं. Some poor people are coming to my place for this. I would not like to charge more. You know, last when she had increased the price, unbelievable but true, 10 years back. 10 years back. तो 10 साल से यही 1 रुपये में इडली, चटनी, सांभर वो बेच रही है. सोशल मीडिया पे आने के बाद में आनंद महेंद्र जी ने इनके बारे में बहुत अच्छे शब्द लिखने के बाद में काफी सारे लोग आगे आए हैं उनको हेल्प करने के लिए. अच्छी बात है. लेकिन कमल थला हम सब लोगों को, यहाँ जो बैठे हैं, हम सब लोगों को एक बात कहती है, if Kamal Thala can do, who cannot? यदि कमल थला कर सकती है तो हम में से कौन नहीं कर पाएगा? सब कोई. और कमल थला जैसी ही एक और कहानी, गुजरात में राजपीपला गांव, छोटा सा, वो गांव में एक परिवार, एक महिला, 5 संतान,
नर्मदा बहन उनका नाम, उनके बारे में जानना हुआ था, अवसान निमित्त जाना हुआ। इनके 5 संतानों में से सबसे बड़े जो संतान, जो पुत्र थे, इन्होंने कहा कि पिताजी का मुंह मुझे थोड़ा बहुत याद है। बाकी के 4 ने कहा कि हमको तो स्मरण भी नहीं है। इसका मतलब कि ये पांचों के पांचों को पढ़ाने का, बढ़ाने का पूरा काम नर्मदा बहन के पास में था। एकदम छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा, उसमें काम करने के बाद में नर्मदा बहन दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे। कठोर परिश्रम करके कुछ पैसे जमा होते थे, इनमें से ये 5 बच्चों को पढ़ाया। All the 5 got education with the help of this Narmada Ben, her efforts. And the same person who was having difficulty in earning enough, जैसे आगे बात हो रही थी महर्षि बाई के बारे में, ऐसा ही नर्मदा बहन के किस्से में महीने के कुछ न कुछ, एक वीक में 1 से ज्यादा बार तो नर्मदा बहन भोजन नहीं करते थे, बहाना कुछ करते थे, लेकिन भोजन तो नहीं सकता। बड़े होने के बाद में बच्चों को भी पता चलने लगा था। तो ऐसे परिस्थिति वाले नर्मदा बहन ठंडी के दिनों में 10 जूट बैग खरीदते थे। 10 जूट बैग, कोथड़ा खरीदते थे। 10 बजे के बाद में घर के पास में 5 जूट बैग बिछा देते थे। आसपास के जो कुत्ते होते थे, स्ट्रीट डॉग्स, दे वुड कम एंड स्लीप देयर। आफ्टर सम टाइम नर्मदा बहन आकर वो दूसरे 5 जो जूट बैग्स थी वो उनके ऊपर बिछा देती थी, उठाड़ी देता था। सर्दी के दिन खत्म होने के बाद में ये सब क्लीन करके जरूरत वाले किसी को दे देते थे। नर्मदा बहन ने अपने आसपास के सभी लोगों को बोल के रखा था कि महिलाओं को, यदि आपने कहीं भी आपके पास में साड़ी, साड़ला कहीं फटे हुए हैं तो मुझे दे दीजिएगा। तो सब लोग आकर उनको देते थे, अच्छे तरीके से काटते थे। उसमें से छोटे छोटे बेड कवर, बच्चों के लिए ओढ़ने का जिसको कवर कहते हैं, ऐसे वो बनाते थे। कुछ लोगों को मालूम होगा कि राजपीपला वनवासी विस्तार है और काफी गरीब वनवासी वहां से गुजरते थे। तो जिन वनवासी के बच्चों के शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता था, उनको ये दे देते थे। उनके अवसान पे पता चला बहुत सारे परिवार ऐसे आए जिन्होंने कहा कि नर्मदा बहन ने हमको बहुत हेल्प की थी। हो भाई, और ऐसे बहुत सारे फैमिली थे जिनको ये बच्चों में से कोई पहचानता नहीं था, कोई नहीं पहचानता। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि किसी का कुछ अच्छा करने के लिए, किसी का कुछ अच्छा करने के लिए हमारे पास में ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल की इच्छा की जरूरत बहुत है। नर्मदा बहन, महर्षि बाई, ऐसे लोग
हमारे आसपास में है, लेकिन सभी लोग जो इसी स्थिति में से होते हैं वो ऐसा करते नहीं है। इन्होंने ये करके दिखाया। ये कमला थाल ने करके दिखाया। ये सब कहानियां कुछ छोटी है, लेकिन बताती है कि ऐसे लोग हमारे आसपास में ऐसे हैं जिनको हम भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। कमला थाल जैसे कोई महिला यदि हमारे ध्यान में आए, आनंद महेंद्र ने लिखा, बाद में तो सबने कहा, लेकिन यदि ध्यान में आता है तो इनके बारे में काफी कुछ किया जा सकता है। अभी मैं ये जो हेल्प वाली बात आई उससे अलग विभाग में जा रहा। उसका नाम है आधुनिक श्रवण। ये उन दिनों की बात है जब सोमनाथ जी मंदिर कोई कार्यक्रम निमित्त रहना हुआ था। बड़े सवेरे जाकर कुछ वहां जरूरत वालों को व्हील चेयर में बिठाकर ले जाना, ऐसा कुछ हो तो देखना, ऐसा एक क्रम बना था। उस समय एक युवान अपने पिता को कंधे पे बिठा करके सोमनाथ जी पटांगण में आया। ताज्जुब लगेगा हम सबको, आज के जमाने में क्या ऐसा होता है? हाँ, मैंने नजर से देखा है। इन्होंने अपने कंधे पे अपने पिताजी को बिठाया था। हमने उनको कहा भाई ये व्यवस्था है, ठीक है, उन्होंने बाद में व्हीलचेयर में बिठाया। लेकिन अभी कहानी शुरू होती है। मैंने पूछा कहां से आए? इन्होंने कहा राजस्थान के कोई फलाना फलाना गांव से आए। हमने कहा तो आप ऐसे वहां से यहां तक कैसे आ गए? इन्होंने कहा कि पिताजी बीमार हो गए थे, पांव चले गए बीमारी में, अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते थे। घर में एक बार कहा कि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा थी। मैं कहा तो जरूर जाना चाहिए। अरे भाई मेरे पांव ऐसे है, कैसे जाएंगे? अरे आपके पांव ऐसे है तो हम क्या नहीं है, हम ही तो आपके पांव है, हम ले जाएंगे। अच्छा, राजस्थान से चलकर वो नहीं आए थे, लेकिन जहां वाहन, जहां बस नहीं होती थी, वहां हर जगह पे उनको कंधे पे बिठा करके चल करके वो लेकर जाते थे। और वो एरिया, हम सब तो हिंदुस्तान के हैं तो हमको पता है कि वो एरिया भी ट्रेन बस होने के बाद में भी कितना बड़ा होगा। और मजे की बात यह है कि ये जो श्रवण कुमार थे वो कहीं व्हीलचेयर मांगने के लिए नहीं जाते थे। पिताजी को कहीं कोने पे बिठाया, चलो कहीं व्हीलचेयर ढूंढ ले करते हैं, ऐसा नहीं। वो अपने आप में कंधे पे बिठा करके निकल जाते थे। व्हीलचेयर वाले देखते तो बताते कि भाई व्हीलचेयर में बैठ जाइए। एक सही कहे उस रूप से आधुनिक श्रवण कुमार थे। और जब उनसे बातें हुई, कहा कि भाई आप तो अद्भुत काम करते हैं। इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ना, वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, दिल में बसा लीजिएगा और ऐसे पुत्र बनने का सोचिएगा। इन्होंने कहा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, अपने पिताजी के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना, ऐसा बोला। कोई अभिमान नहीं, कोई गर्व नहीं, और सुनने के लिए ज्यादा मिनट खड़ा भी नहीं रहने का, चलते बने। एक ऐसे ही श्रवण कुमार हमारे परिवार में भी हुए।
छोटे भाई की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, हॉस्पिटल में थे। एक ही बेटा जॉब में से छुट्टी लेकर आ गया था हॉस्पिटल पे। समय इनडेफिनेटली बढ़ रहा था। पिताजी आईसीयू में थे। कब मुक्ति होगी कोई डॉक्टर भी बता नहीं रहे थे। हॉस्पिटल में गए तब तो पता चला था कि एक आध वीक होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था कितना टाइम होगा। उसकी कंपनी में से 2 बार फोन आ गए। तीसरी बार उनके एचआर हेड ने कहा, देखो तुम्हारी कैरियर का सवाल है, नहीं आओगे तो जॉब चली जाएगी। इन्होंने स्वस्थता से कहा, मेरी प्रायोरिटी निश्चित है, मेरी प्रायोरिटी मेरे पिताजी है। मैं मानता हूं मेरी जॉब चली जाएगी, कैरियर को थोड़ा नुकसान होगा, देख लेंगे, लेकिन पिताजी को अटेंड करने की ये क्षण मेरी जिंदगी में दूसरी बार नहीं आ सकती। मेरी जॉब चली जाए प्रॉब्लम नहीं है। जॉब चली गई और पूछने वालों को छोड़कर किसी को पता भी नहीं कि जॉब चली गई। और 6 महीने तक जॉब का कोई असर नहीं था। इसके बावजूद एकदम अपने पिताजी को अटेंड करते रहा। घर पे आ गए, मदद की आवश्यकता थी, घर पे आ गए, धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। सबने नक्की करके कहा, बेटे ने भी कहा, तो मैं जॉब के लिए जाऊं। कोई एक दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। घर से निकला, पेट्रोलियम इंजीनियर था, बाड़मेर जाना था, अहमदाबाद पहुंचा। पिताजी को स्वस्थता नहीं लगी। परिवार के लोगों ने कहा, यार तू वापस आ जाना। वापस आ गए। और जब तक सर्व रूप से ठीक नहीं हो गए तब तक उन्होंने कभी जॉब के लिए सोचा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे श्रवण कुमार शायद हर परिवार में होंगे। ऐसे श्रवण कुमार हर परिवार में होंगे। मैं अलग अलग बातें करता हूं तो आपसे एक और भी बात कहूंगा, दिल में ले जाइएगा। काइंडली कैरी इट विथ यू। If you have some such young boys and girls like Shravan Kumar, those who are sacrificing anything and everything for their parents, do celebrate, do recognize, and do appreciate them. आज जिन्होंने अद्भुत काम किया है, ऐसे लोगों को हमें उसी तरीके से आदर देना है। कुछ और लोग भी ऐसा बनेंगे। हम लोग जैसे कुछ परिवार में सेवा करने वाले लोगों की बात की, as we talked about some people who served various family members. Now I'm sharing something about some individual who played some different role as employee and employer in their various organizations. Near Rajkot, there is a city called Jaipur. It's a story few decades back. छोटा सा गांव, small village, and there used to be one छोटा राज्य। तो उनके जो राजा होते थे, छोटा राज्य के तो राजा का भी स्थान इतना ही छोटा हुआ करता था। They also used to be very small in the size of that kingdom. कुछ लोग रहते थे, all those villagers
who would be staying in that village. So whenever some crops are coming in, one part of the crop was to be paid to the king. The kings used to be so simple and not as much wealthy also. Some people who are here may not be knowing also. तो राजा के घर पे जब कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आते थे, हम सौराष्ट्र की भाषा में इन्हें दरबार कहिए છીએ, तो उनके घर पे जब गेस्ट आते थे तो अच्छे बिछाने गांव के कोई संपन्न किसान होते, उनके घर से ले जाते थे। राजा के घर पे, दरबार के घर पे मेहमान आए तो कोई राजा का छोटा आदमी, उनका कोई मेल सर्वेंट वहां के जगा भाई पटेल करके एक किसान के घर पे गया और कहा कि भाई दरबार ने ત્યાં મહેમાન આવ્યા છે, मेहमान आए हैं, काइंडली गिव कुछ बिछाने का अच्छा दो। देने में कुछ टाइम लगा तो वो जो सर्वेंट था उन्होंने कुछ नई अच्छी बातें फैमिली के लेडीज को कही। जैसे कहा कि दरबार को कुछ देना होता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, आपको बार बार कहना पड़ता है, आप लोग कैसे लोग हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं अच्छा ऐसा कहा। जगा भाई को पता चला, उन्होंने नक्की कर लिया अब यहां रहना नहीं है। तो उन्होंने जब बहुत जो क्रॉप आ गया अपने बैलगाड़ी में, 2-3 बैलगाड़ी बराबर क्रॉप से ओवरलोड कर दी। एकदम रात के अंधेरे में उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में we'll reach the village, we'll reach home, so nobody would know that I have brought the crop, so I may not have to pay to some portion to king, and I will leave this place. That was the plan. Around 2:30 in the night, started from the field, अपने खेत में से उन्होंने आने का सोचा और शुरू किया। 2:30 बजे के करीब करीब सवेरे 3:30 बजे के आसपास गांव के नजदीक से जाती हुई एकदम छोटी सी जो रिवर थी, एट दैट रिवर बेड अनफॉर्चुनेटली उनकी बैलगाड़ी फंस गई। एंड with all best efforts, Jagabai was not in a position to take out that bullock cart out from that river bed. फंस गया था और कोई था नहीं, कितनी भी मेहनत करे कुछ हो नहीं रहा था। 4:30 बज गए, morning 4:30. So one person who was coming in सौराष्ट्र, बड़े सवेरे जब कोई बाहर निकलते हैं तो यहाँ मुंह पे हम जैसे मास्क लगाते हैं, ऐसे वो लोग कपड़ा लगा के निकलते हैं तो पता नहीं चलता है who is that person. So that person was coming nearby. Jagabai said, "Hey boy, kindly come here and support." Person came, supported, and the bullock cart came out. Reached home morning around 9 o'clock or so. Jagabai went to Darbar king, whose name was Ji Bai, और दरवाजे में से ही बोला, दरबार हम यहाँ रहते रहते थक गए हैं, we are tired of living here and we don't want to live here, we want to leave this place.
Jibhai said, Jaga bhai, you are an honorable citizen of this small village. Why are you leaving? Please come and sit here. Jaga bhai said, nay, I don't want to sit. But finally, he sat nearby Jibhai. Jibhai said, but what is the problem? Jaga bhai said, your servants are telling anything and everything to our family members. We don't want to stay in this family, in this village. Jibhai, the Darbar, the king, apologized. इन्होंने माफी मांगी. इन्होंने कहा कि भाई मेहरबानी करके जगह भाई हमको माफ कर दीजिए. ये छोटे लोग कुछ बोलते हैं, दिल में मत लीजिए, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके परिवार के लोगों को भी आप मेरी ओर से माफी कह दीजिए. लेकिन आप मत जाइए ना, कहां जाएंगे आप? इतने सालों से आप यहाँ हैं, आप मत जाइए. जगह भाई ने कहा नहीं, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा. ठीक है, जगह भाई को चाय नाश्ता करवाया गया. जगह भाई जाने के लिए खड़े हुए. घर के दरवाजे तक जी भाई साथ में गए. आसपास कोई नहीं था. जगह भाई के कान के पास में आकर जी भाई ने कहा, जगह भाई ऐसे गांव में जाना जहां गाम धनी अंधेरे में सपोर्ट करे, उजाले में लोगों को न बताए. जगह भाई को पता चल गया, माय गॉड, अंधेरे में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था ये तो ये जी भाई थे, और मैं ये क्रॉप देना ना पड़े उसकी चोरी करने के लिए जा रहा हूं. ये जानने के बाद में भी वो सब लोगों के बीच में मेरी इज्जत नहीं ले रहा है. वो एकदम जी भाई को पाँव में पड़ गए, माफी मांगी. जी भाई, जगह भाई के बाद में 3 जनरेशन आज तक जी भाई के गांव में वो लोग रह रहे हैं. ये छोटे गांव की छोटी कहानी हमारे लिए कुछ है क्या इसमें? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, अपने से छोटे लोगों को हम छोटापन महसूस नहीं करवाएंगे. जी भाई की सबसे बड़ी बात क्या रही? इन्होंने जगह भाई को छोटापन महसूस नहीं करवाया. और ये हम सबके हाथ में है. कल हम बात करते थे ना, एप्रिसिएशन इन पब्लिक, करेक्शन इन प्राइवेट. जी भाई ये इंग्लिश तो नहीं सीखा था, मैनेजमेंट में कहीं नहीं सीखा था, लेकिन व्यवहार में उन्होंने ये करके दिखाया. और ये कर पाना हम सबके लिए सरल है. जो लोगों में ऐसा है उनको हम उस तरीके से सम्मानित करें. एम्प्लॉइज भी ऐसे होते हैं सामान्य, लेकिन अद्भुत कमिटमेंट दिखाते हैं. बिरला कॉपर कंपनी में मैं काम करता था. प्लांट में फायर हो गया, एकदम एक वॉल बंद करने के लिए जाना पड़ने वाला था. एक कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉई आता है, एक कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉई आता है, प्रोजेक्ट हेड के पास में अपना आई कार्ड देकर कहता है, साहब मैं जाकर के वॉल बंद करके आ जाऊंगा. वापस न आया तो जरा फैमिली को संभाल लीजिएगा. ऐसा कहकर आई कार्ड देकर भागा वॉल बंद करने के लिए. वॉल बंद कर दिया.
पूरा प्लांट बच गया, कुछ 100 कर्मचारी बच गए, ये बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया। ईश्वर कृपा से वो बच गया। वो जब तक हॉस्पिटल में था तब तक एक परमानेंट एम्प्लॉय की जितनी दरकार करनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा दरकार उसकी की गई। ट्रीटमेंट में कहीं भी 0.01% भी कम नहीं हुआ। बहुत रेगुलरली उनको अटेंड किया गया, बहुत रेगुलरली उनके फैमिली को अटेंड किया गया। लेकिन ये सब जो हम मतलब कंपनी ने जो भी किया वो मुझे लगता है बहुत सेकेंडरी है। वो कर्मचारी ने किया ना, वो जबरदस्त है। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे कर्मचारी लाखों में एक होते हैं। ऐसे कर्मचारी लाखों नहीं होते हैं, लाखों में एक होते हैं। तो जो लाखों में एक होते हैं ना, उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए वो जेम्स और ज्वेलरी से ज्यादा बिजनेस के कौन लोग जानेंगे, क्योंकि हीरा को पहचानता कौन है? आप ही तो पहचानते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है। हमारे एक साथी अति सामान्य, जब काम चालू किया जॉब का तो एसएससी पास थे, मैट्रिक, स्टेनोग्राफर थे। सबको पहला कहते थे कि पढ़ो, उन्होंने पढ़ा, काफी आगे गए। विवेकानंद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सेल इंडस्ट्रीज की जो थी, वहां जाते जाते वो पर्सनल एग्जीक्यूटिव बने थे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के कारण जा रहे थे। तो एक्सेल इंडस्ट्रीज के श्री कांति सेन भाई श्रॉफ ने उनको कहा कि तुम जाना है तो जाओ, मैं बुलाऊं तो वापस आना पड़ेगा। उन्होंने कहा जरूर आ जाऊंगा। बात को 10 साल बीत गए। टॉरेंट कंपनी के बहुत बड़े प्लांट के वो एचआर हेड बन गए थे। डेजिग्नेशन बन गया था जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर का डेजिग्नेशन था। कच्छ में अर्थक्वेक हुआ और कांति सेन भाई श्रॉफ परमानेंटली कच्छ शिफ्ट हुए। इन्होंने कहा कि भाई ये बटुक वाजा को वापस बुलाओ, और इनको मैसेज भेजा कि भाई कांति सेन भाई कहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं आ जाता हूं, और कुछ भी नेगोशिएशन नहीं, कुछ बात नहीं, टॉरेंट छोड़कर विवेकानंद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वापस आ गए। कंपनी ने बाद में उनकी सैलरी कैसे करना वो सोचा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कोई नेगोशिएशन नहीं। जरूरत है, मैंने वादा किया था, इनसे मेरा ऐसा संबंध है, इन्होंने मुझे बहुत आत्मीयता दी थी, आज समय है उनके पास में खड़े रहने का। और वो उनके पास में जाकर जब तक उनकी जरूरत थी तब तक वहां रहे। उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ऊंची थी, इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। और जो आप लोग देते हैं ना, वो कैसे उसका परिणाम मिलता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ये वाजा भाई जब वहां गए कांति सेन भाई शॉप के पास में, कांति सेन भाई ने उनको कहा कि तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों बुलाया? मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि तुम मुझे हमेशा सच बताते हो। मैंने तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मुझे हमेशा सच बताते हो। वाजा भाई ने कुछ दिन पहले कहा, ये आप लोग जो है ना यहाँ, जैसे सीनियर लोग हैं, जीतू भाई जैसे मेरे दोस्त हैं,
आप लोगों ने ये किया हुआ है, इसलिए मैं बताता हूं कि आपके शब्द लोगों के दिल में कैसे बसते हैं। कुछ डेकेड्स के बाद में, कुछ दिन पहले वाजाबाई ने ये मुझे कहा कि कांति सेन भाई श्रॉफ ने मुझे जब कहा ना कि मैंने तुमको क्यों बुलाया मालूम है, क्योंकि तुम मुझे सच कहते हो। इन्होंने कहा कि कांति सेन भाई के ये शब्द मेरे लिए नोबेल प्राइज जैसे थे। आप लोग जब दिल से कोई अच्छी बात, किसी कर्मचारी ने जो कुछ अच्छा किया है उसके बारे में बताते हैं ना, उसकी इसी तरीके की जबरदस्त इंपैक्ट उसके ऊपर रह जाती है। मैं सब लोगों को बताता हूं, एचआर में मैंने काफी काम किया, इसलिए मैं आपसे ये दो शब्द बताना चाहूंगा। आप जैसे वेटरन्स के अच्छे शब्द लोगों के दिलो दिमाग में सालों तक रहते हैं और वो ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग दुर्भाग्य से कुछ अच्छे शब्द कोई और मैनेजर से नहीं पाते हैं, तो वो भी उनको लंबे समय तक याद रह जाता है, याद रह जाता है। दो बात में से एक ऐसी ही कमिटमेंट की सुंदर दास्तान एक और सामान्य व्यक्ति की। साबरकांठा में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक स्कूल, ऐसे गांव में तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल होती है, वो भी सरकारी प्राइमरी स्कूल, ट्रस्ट थोड़ा सपोर्ट कर देता है। बदरुद्दीन भाई करके एक भाई वहां प्रिंसिपल, ये सच्ची कहानी है, जितनी भी कही वो सभी सच्ची है। ये बदरुद्दीन भाई हर साल, बहुत सुनने जैसी बात है, कर्मचारी के रूप में मैंने बदरुद्दीन भाई जैसा दूसरा व्यक्ति अभी तक मेरी जिंदगी में देखा नहीं है। वो हर साल महीने 15 दिन की छुट्टी लेते हैं, हर साल 15 दिन की छुट्टी लेते हैं। उस छुट्टी के दौरान वो वहीं स्कूल में ही काम करते हैं, घर पे नहीं, स्कूल का रेगुलर काम करते हैं। तो किसी ने पूछा, किसी ने नहीं, अनेकों ने पूछा, अरे बदरुद्दीन भाई, आप ये छुट्टी लेकर स्कूल में रेगुलर काम क्यों करते हैं? तो फिर छुट्टी लेने का मतलब क्या? तो फिर छुट्टी रखते क्यों हो? बदरुद्दीन भाई ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कर्मचारी के रूप में यदि मैं कभी कहीं रहूं तो मेरे में भी ऐसा व्यवहार आए। बदरुद्दीन भाई ने कहा, मैं एक छोटे गांव में रहता हूं, तो परिवार के परिचित, सगे संबंधी, दोस्त लोग मिलने के लिए आते हैं। तो वो जब आते हैं चालू दिन में, तो मिलने के लिए स्कूल पे चले आते हैं। तो स्कूल का टाइम मेरा थोड़ा खराब होता है ना, उनके साथ में बातें करते समय मुझे स्कूल के समय में परिवार का काम करना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है। तो मैं साल में ये 15 दिन की छुट्टी रखकर काम चालू रखकर ये मैं रीपे कर रहा हूं। किसी ने कहा, अरे बदरुद्दीन भाई, आपको कौन पूछता है? यहाँ आपको तो कोई कहने वाला भी नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ट्रस्ट वाले भी आपको मानते हैं। बदरुद्दीन भाई ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो है ना, मैं उसे ध्यान में रखकर मेरा व्यवहार कर रहा हूं।
ऐसे कर्मचारी हम सबको मिले तो कितना अच्छा होता। हमारे परिवार में एक बहुत ब्रिलियंट, आज उनका जन्मदिन है, उज्जवल भाई भट्ट। उनका फियांसे, वो रिलायंस में जॉब करते थे, उनके फियांसी एसआर ऑयल में जॉब करती थी जामनगर। तो एंगेजमेंट के बाद में ये जो पुत्रवधू हमारी है वो उन्हें फोन करती थी, और ये आधी मिनट बात करके फोन रख दे, 15 सेकंड में फोन रख दे, कभी कभी तो बात ही ना करे। तो वो लड़की ने उज्जवल को कहा, वे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरे को फोन करती हूँ तो मेरे से ठीक बात करने के बजाय तुम फटाक सा फोन रख देते हो, मेरे से बात नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है। ये बात हर घर में पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उज्जवल ने कहा, देखो भाई, तुम जरा समझ लो और परमानेंटली समझ लो, रिलायंस कंपनी तेरे से बात करने की सैलरी मेरे को नहीं देती है। रिलायंस कंपनी तेरे से बात करने की सैलरी मेरे को नहीं देती है, इसीलिए अब से मेरे ड्यूटी टाइम में कभी फोन नहीं करने का, सिर्फ कोई बहुत सीरियस सिकनेस का मामला है तो ही फोन करने का, नहीं तो नहीं करने का। और आज तक इसे फॉलो किया जा रहा है। हमें लगेगा कि फोन करना नहीं करना छोटी बात है, हो सकती है, मेरे लिए तो नहीं है। ये फोन की बात ही नहीं है, ये बात है कमिटमेंट की, ये बात है कंपनी के समय में इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की बात है। जब मैं ड्यूटी पे हूं, मन वचन कर्म से मेरा पूरा समय मात्र 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 कंपनी के लिए मुझे उपयोग में देना है। और ये वर्क वैल्यू हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करनी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सब तो व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सब लोग नौकरी करने वाले एम्प्लॉय नहीं, लेकिन सगे संबंधी में, परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि नौकरी करता है कहीं भी, कोई भी पोजीशन पे, वो सीईओ क्यों नहीं है, ये कहानियां उनको बताइएगा, उनमें ये संस्कार आए वो देखिएगा, और आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज को किसी के द्वारा ये कहलवाइएगा। जब हम मालिक लोग, कर्मचारी के रूप में लोग क्या करते हैं उसकी बात करते हैं, पीपल टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, डजंट मेक एनी डिफरेंस, व्हाटएवर इज राइट इज राइट। ये बातें आज इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है। हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग और अंतिम बात करके मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको बताऊंगा। छोटी सी बात है, 1892 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड स्कूल में 18 साल का एक ऑर्फन हर्बर्ट नाम का लड़का पढ़ता था। फी के पे करने के पैसे नहीं थे, सोचा कि क्या करे तो ये फी पे हो जाए हमारी। अपने दो दोस्त को पकड़ा, तीनों ने मिलकर नक्की किया कि एक कॉन्सर्ट करते हैं, यदि कॉन्सर्ट करेंगे, टिकट विकेट बेचेंगे, उसमें से कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, थोड़ी फी पे हो जाएगी। तीनों ने मिलकर पोलैंड में पैड्रोस्की करके एक अद्भुत म्यूजिशियन थे, आउटस्टैंडिंग वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में उनका बहुत ऊंचा नाम था और उनके नाम के सिक्के पड़ते थे। So, they contacted him and said, look,
we want you to have the concert, and what are your terms and conditions, you tell us, and we'll try to fulfill the same. So Pedrosky's secretary gave terms condition, and since these were the students, they said, please forego advance. They said, fine, no issue. Pedrosky came, presented great concert, great, wonderful. All those people who were in love of music, they had just greatest words for that concert. Unfortunately, the boys were not in a position to sell enough tickets. They could collect only $1,600, which had been very, very, very low in comparison to the fees which were committed for Pedrosky. They were baffled what to do, embarrassed, stood in front of Pedrosky. Secretary had given enough of firing to them. Pedrosky asked, what's the issue? It was said, look, only $1,600 we could collect, and we have a lot to pay to you. You know, now the greatness comes. Pedrosky said, don't worry. Out of this $1,600, first pay the fees of all the three of you. If some money is saved, then keep it for your lodging and boarding. Do take care of yourself. I don't want any money from you. You young boys, make some good grade in your life. Pedrosky went away without taking single dollar from these boys. More than 25 years afterwards, after the First World War, Poland was in dire situation. एकदम famine जिसको बोले, दुष्काल. They were in need of lot of wheat and other grains. Few crores. At that time, Pedrosky was the Prime Minister of Poland. He requested United States President and the Food Grain Corporation immediately on his request, less than a week, material reached Poland and starvation was saved. People did not die of starvation in Poland because of that. Pedrosky thanked the president of that corporation. The person said, sir, Pedrosky को sir कहा. Sir, you don't have to thank. Do you remember? Probably you may not be. But do you remember 25 years back, one young orphan boy was supported by you. And that time, he would not have gone further in life without your support. Sir, that boy is today once again thanking you. The head, the president of that corporation, who became president of USA afterwards, Herbert Hoover, was the person. This is how people make difference in life. I hope we all will be fortunate enough to make some difference in life. Yesterday, I told you a few things about some family roles. I had told you one thing. Always remember, in this world, for this world, we are one more person. We are one more person. But for our family members, we are the world. उनके बिना ये उन घरों में हमारे बिना अंधेरा हो जाने वाला है. एक ध्यान में रखना है, खास पेरेंट्स के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, और ये आप दिल में रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. मेरे पेरेंट्स तो अभी है नहीं,
लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं, जिनके पेरेंट्स हैं उनसे खास रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा याद रखिएगा, हम जितना रहने वाले हैं ना उतना वो नहीं रहने वाले हैं। वो चले जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम सोचेंगे मैं ऐसा करता तो बहुत अच्छा होता, मैं वैसा करता तो बहुत अच्छा होता। क्या फायदा? आज मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखा रहा हूं, देखने नहीं है, दिल में ले जानी है। आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी मुझे श्रद्धा है। I have given the access, Himanshu bhai. You can proceed. Yes. हमारे यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए तो कोई नहीं। मैं और मेरी मिसेज दोनों ही काम पे निकल जाते हैं सुबह, क्या करें? अब ख्याल रखिएगा इनका, हम आते रहेंगे। चलता हूँ मैं, एक बार देख तो ले मेरी तरफ, जा रहा हूँ मैं। ख्याल रखियो अपना। किसी के साथ नहीं बांटने वाला। क्या सुबह उठते ही मेरे बेटे को अदरक वाली चाय चाहिए, और वो भी मेरे हाथ की बनाई हुई, और इसी की पसंद है। पता नहीं अब क्या करता होगा। फोन करके देखो, शायद बात हो जाएगी मेरे बेटे से। किया था मासी, इजी रहता है ना, हफ्ता हफ्ता बाहर गाँव रहता है, खाने का नहीं, पीने का नहीं, सारा दिन काम काम काम। चीज बहुत पसंद है, पिज्जा का तो बड़ा शौकीन है पहले से। बेटे का फोन आया? नहीं मम्मी। आपने जो सुंदर सुंदर कुर्तियां बनाई है ना, इसके लिए। हाँ, ये पिज्जा तूने ऑर्डर किया ना मेरे लिए? तुझे पसंद है ना? तेरी आहट वो पहचाने, दिल में है क्या वो सब जाने। तेरा चेहरा वो पढ़ लेगी, तेरा हर दर्द समझेगी। तुझे देख कर है जिंदा, तुझ में है जिसका जहां, वो है माँ, वो है माँ,
वो है माँ। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो लग रहा है हिमांशु भाई। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। क्या एक मैंने कहा नेटवर्क के लिए, लेकिन पापा, आप? भाई तूने आज मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया तो मैं खुद ही चला आया। गिफ्ट आज? लेकिन आपकी बर्थडे में और बरसी में तो अभी। अरे बेटा, आज फादर्स डे है ना। सॉरी पापा। बैग। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आपने जीते जी मैं कभी कह नहीं पाया, क्योंकि आज मैं खुद एक पिता हूं, तो सोच सकता हूं कि एक पिता के लिए अपने बच्चे से सुनना कैसा लगेगा। मैं मैं आपसे बेहद प्यार करता था पापा, हमेशा। राजू, I love you, Dad. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड शो आपके सामने आ रहा है। काइंडली टेक इट टू योर हार्ट, यू विल एंजॉय इट thoroughly. It's in English, but it will touch you, and you will understand that also. you can share Himanshu bhai? The screen sharing is open for you. Yes, yes. Is it reaching there? No, we are unable to see the screen. Oh, okay. Any issue? There is one.
ईश्वर से हम सब प्रार्थना करें कि हम किसी के काम आ सके, और काम आने के बाद में किसके काम आए वो कभी याद न रखें। थैंक यू वेरी मच। Fantastic, fantastic, Himanshu bhai. Over to you, Ashok bhai. I think this was a very emotional and a very sentimental episode, and I was really very, very happy with the way it was conducted by Himanshu bhai. The story of Narada ji, the story of the two Shravan Kumar ji, Jaga bhai, how he so nicely appreciated what his Darbar had said and finally understood reality of life. Kirti Sen ji's story again, so very well explained to us. And again, the stories of two of his own family members that he explained. I think this is real inspiration and real mind changers and people who can really show you the right way, the right path. I think Himanshu bhai is one of the persons जो आपको दिशा दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, समय आपका क्या चल रहा है वो समय को समझा सकते हैं, और आदमी की कीमत क्या है वो भी पहचानने का एक जरिया दिखा सकते हैं। जीतू भाई, आप शुभ क्यों છો? અદ્ભુત કહી શકાય, અને મને લાગે છે કે આવા વિષયો નક્કી કરવામાં તમે લોકો નિમિત્ત છો, એટલે આ આપણા જ્વેલર્સ ની પણ ઊંચાઈ બતાવે છે એવું લાગે છે મને. સામાન્ય રીતે પ્રોફેશનલી જે કંઈ પેલા હોય એમાં આ પ્રકારના વિષયો પસંદ કરવા, એ પસંદ કરવા વાળાને ધન્યવાદને પાત્ર છે, અને રજૂ કરનાર તો ધન્યવાદને પાત્ર છે જ. અને જે ભાષામાં ને જે પદ્ધતિ અને જે લાગણીથી એમને વિષય મૂક્યો છે, ખરેખર હૃદયસ્પર્શી બિલકુલ એકદમ. મારી તરફથી બી ખાસ આપને very big thank you and the highest level of appreciation that I can ever give. Avinash ji, have any questions that anyone has? Just 2-3 requests, not questions basically. Okay. हिमांशु भाई, वीडियोस आप अशोक भाई के पास भेज दीजिए और स्लाइड्स आप अशोक भाई के पास भेज दीजिए, ताकि आप सब वो वीडियो और स्लाइड ग्रुप में डाल दें, ताकि लोग याद रखें उम्र तमाम इन वीडियोस को। मेरे शब्द बोलते वक्त मेरे शब्द रोनी हो रहे हैं, क्योंकि इतने इमोशनल वीडियोस और वो थे आपके, बहुत ही thoroughly एंजॉय किया हम लोगों ने। ओवर टू सुभाष भोला जी फॉर फाइनल वोट ऑफ थैंक्स। सबको बहुत बहुत नमस्कार। हिमांशु भाई
जिन्हें कितनी सादी भाषा में और सादे से शब्दों में जो बात कही है कि कैसे सामान्य से लोग ने इतने अद्भुत कार्य, इतनी मदद की, छोटी छोटी मदद की, जिनसे उनकी जिंदगी में अद्भुत तब्दीलियां आ गई। एक चीज जो उन्होंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, बिकिनो ने किया, महर्षि जी ने किया, कमल ताला ने किया, नर्मदा बहन ने किया, इम्पोर्टेंट सारी मैसेज में से जो बात मुझे समझ में आ रही है कि आपने जो आज सारी बातें उनकी सुनी, इसका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप क्या करेंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि जो तब्दीली आप दूसरों की जिंदगी में लाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप करेंगे, क्या आपके लिए जरूरी है, और क्या इसको आज करेंगे आप। इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसको आज यहाँ से हिमांशु भाई से ये बात लेके जाएं कि अगर साधारण व्यक्ति भी लोगों के मदद कर सकते हैं, तो यहाँ जो इतने बड़े बड़े असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग बैठे हैं, क्या वो साधारण सा कार्य करने का आज निश्चय ले सकते हैं। यही मैं समझता हूँ कि आज सबसे, और ये दिल वाली बात है, इसको दिल से जो उन्होंने कही है, इसको दिल में लगाना है कि कैन यू मेक द डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। मुझे लगता है कि हिमांशु भाई की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कितने सादे से व्यक्तित्व वाले लोग और कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात को ना बिल्कुल मन में धार लेना चाहिए और इसको करना चाहिए। मैं माइंड स्पीक के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबका बहुत ही बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हिमांशु भाई को चुना, एक दिन के लिए नहीं, 2 बार के लिए चुना। और मुझे लगता है कि उनकी बार बार जो बातें हैं वो हमारे मध्य में रहेंगी, हम सीखते रहेंगे। उनके जितने भी बातें उन्होंने बताई हैं वो हमें दिल में लेके जानी है आज। अब मेरे को एक और भी बात कही गई है कि माइंड स्पीक जो है इतने दिनों से इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम है वो एक पैनल डिस्कशन है वेबिनार में, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ जड़ाऊ, जो हमारी इंडिया की हेरिटेज है ना, जिसके ऊपर हम सब चल रहे हैं। आज दुनिया में पेरिस में कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो हमारे को जिस रूप से गिना जाता है, आज टिफनी में, कातिये में अगर हमें गिना जाता है तो हमारा वो जड़ाऊ जरूरी है जिसकी गिना। उसके लिए जो पैनलिस्ट हैं, चंदू शर्मा जी, सुनीता शेखावत जी, सुधीर कास्लीवाल जी, प्रतीक शाह जी, श्यामल व्यास जी, जो अपने आप में जड़ाऊ ज्वेलरी में एक पक्का व्यक्तित्व रखते हैं, जिनके हाथ से चल रहा है। अशोक मीनावाला जी कल इसका मॉडरेशन करेंगे। और सबको बहुत बहुत नमस्कार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। थैंक यू भोला जी, थैंक यू हिमांशु भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू नितिन भाई। चलिए, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू अशोक भाई, गुड डे। थैंक यू सर।